is raised. In my last video, I taught about you and I have explained to you the chapter A Letter to God. And part 1 I have explained to you. Today in this video, I will explain you the part 2 of this chapter. Right? So, now let's start with this. We know about the Lecho. Lecho is a farmer, right? How his crops were destroyed now, and he was very sad and disappointed. And now what happened next? So we will see in this part 2. Help from God. Now look, help from God means God say help him. So no one was there to help him because the Lencho's house was the only house in the middle of the valley. So now there is a single hope, that is help from God. अब लेंचो के वहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए no one is there, कोई भी नहीं है. अब उसको ये लगता है कि अब केवल एक ही होप है, एक ही आशा है कि अब हमें गॉड से ही हेल्प मिल सकती है. All night he thought about a help from a God. कैसे गॉड से हेल्प मैं ले सकता हूँ, वो पूरी रात सोचता रहा. And at last he thought and he decided to write a letter to God. और लास्ट में उसने गॉड को लेटर लिखना डिसाइड किया. Second point, it writes a letter to God. Lencho was very laborious. He was an ox of a man, means he was working like an animal. This line is given in your book on page number 5 in para 2, right? Means वो इतना hard working था, बहुत laborious था, but he was not highly educated. वो ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं था, means not illiterate, और illiterate भी नहीं था, अनपढ़ भी नहीं था, but he knew how to write. उसको लिखना आता था कि कैसे लिखते हैं. So he wrote in his letter, उसने अपने लेटर में जो गॉड को लिखा, this was that कि if you don't help me, कि यदि आप मेरी हेल्प नहीं करते हो तो my family and I will go hungry this year. कि यदि आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और मैं दोनों इस साल भूखे रहेंगे. And I need 100 pesos, और मुझे 100 pesos की जरूरत है to sow my fields again and live until the crops comes. यानी कि मेरे फील्ड में जो मैं दोबारा से बीज वगैरह डालूंगा उसके लिए मुझे 100 पैसों की जरूरत है, और जब तक वो क्रॉप्स रेडी होती है तब तक मैं कैसे अपनी लेवल चलाऊंगा या कैसे जूंगा, उसके लिए मुझे 100 पैसों की जरूरत है. Because my crops were destroyed just because of the hailstones. So you can see here, he wrote to God on the envelope. He placed the stamp on it and dropped into the mail box. Right? उसने क्या किया, जो हम लेटर लिखते हैं तो एनवेलप पे हम जो लेटर रिसीव करता है मींस रिसीवर्स एड्रेस, राइट? तो इन रिसीवर्स एड्रेस प्लेस ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप. एनवेलप के ऊपर उसने जहां हम रिसीवर्स का जिसको हम लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखते हैं, तो लेंचो ने लिखा टू गॉड, उसके ऊपर स्टैंप लगाया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. राइट? एंड आफ्टर दैट one more character is here, that is a postman, right? So one of the employee that is a postman. So postman tha, when he took it out, his letter, his envelope, and when he saw it, he was laughing heartily. He was laughing heartily. वो बहुत heartily मतलब बहुत जोर से ठहाके हंस रहा था. And showed this letter to his boss. Boss means postmaster. उसने postmaster को वो लेटर दिखाया, and postmaster was also laughing, but all of sudden he turned serious. तो जब उसने वो लेटर postmaster को दिखाया postman ने, तो वो भी पहले तो हंसने लगा, और the postman also said कि he never seen this type of address in our whole career, कि पूरे करियर में उसने ऐसा एड्रेस नहीं देखा to God. So postmaster was also laughing, but all of a sudden
ही टर्न सीरियस, वो बहुत गंभीर हो गया, सीरियस हो गया और बोला व्हाट अ फेथ, कि क्या विश्वास है, एंड व्हाट अ कॉन्फिडेंस, क्या कॉन्फिडेंस है। आई विश आई हैड अ फेथ ऑफ अ मैन, काश मेरे भी इस लेंचो की तरह या इस व्यक्ति की तरह ऐसा विश्वास मेरे अंदर भी होता। तो आफ्टर दैट postman didn't want to shake his confidence, faith. वो नहीं चाहता था कि लेंचो का विश्वास टूट जाए, तो इसके लिए he decided to do something for him. उसने उसके लिए कुछ करने की डिसाइड किया, and he asked for money from his employees. उसने अपने एम्प्लॉइज से कुछ पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा, and he also gave his some part of salary also, और उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया, right? Now, but it is impossible to collect the 100 pesos. लेकिन इतना मतलब पॉसिबल नहीं था कि एक साथ 100 पैसों कलेक्ट किया जाए. So he collected little more than half, and after that you can see here पोस्ट मास्टर मैंने लिखा हुआ है. तो पोस्ट मास्टर की जो क्वालिटी है वो क्या थी? फेयर था, वो थोड़ा मोटा था, एमिएबल मतलब फ्रेंडली था वो बहुत, इसलिए उसने ये सब किया, ठीक है. और एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और हमेशा दया करता था सब पे. तो ये उसके कैरेक्टर्स थे. अगर इफ एनीवन आस्क्स यू अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर, यू कैन राइट these points in a elaborated form, right? Fat, amiable, for an act of charity, मतलब दयालुता की वर्क करने वाला, काइंड, राइट? जैसे कि उसने एज यू नो जैसे कि उसने लेंचो के लिए किया, एक कलेक्शन किया पैसे का, उसको मनी का, उसकी हेल्प के लिए, ठीक है. एंड नाउ सी ऑन संडे, और वो संडे का दिन था व्हेन लेंचो ही रीच्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो वहां पर बिना देर किए हुए पहुंच गया टू नो अबाउट द रिप्लाई ऑफ दिस लेटर, कि उसके लेटर का क्या रिप्लाई आया है जो उसने लेटर वहां लिखा था. So on Sunday it was the postman himself who handed the letter to him. अब वहां पे पोस्टमैन था, उसने खुद ही वो लेटर उसको दिया, जो रिप्लाई का था उसके हाथ में दिया. And the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed. और पोस्टमास्टर वहां दूर से इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव कर रहा था, क्या देखने का, कि कैसा लगता है कि जब किसी की हेल्प करते हैं तो एक कंटेंटमेंट, एक सेटिस्फैक्शन कैसा आता है व्यक्ति के चेहरे पर, तो वो वहां देखने की कोशिश कर रहा था. गुड डीड, एक अच्छा काम करने के बाद कैसा होता है, वो एक्सपीरियंस ले रहा था इस चीज का, right? And these lines given in page number 6 and para 4, right? Now after that Lencho showed not the slightest surprise, such was his confidence. This line is given in page number 6 para 5. Lencho को वो जब when he got the letter, Lencho showed no surprise, any surprise, but the slightest surprise, उसने बिल्कुल भी वो सरप्राइज नहीं हुआ, और ये उसका कॉन्फिडेंस था. तो पोस्टमास्टर सेड कि व्हाट अ फेथ, ना विश्वास है, मतलब उसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, उसने कहा एज यूजुअल लिया गया, हाँ लेटर आ गया. तो you can see this is a story about a faith. Now people says कि faith can move the mountains. So you can see in this story is all about the faith, right? So and Lencho opened that envelope and counted the money, and he got angry. वो गुस्सा हो गया कि God couldn't make this mistake, कि God तो ये मिस्टेक नहीं कर सकता है. So he got up angrily and went up to window पे गया and asked for a pen and writes a letter again on the public writing table, right? वहाँ एक public writing table थी, वहाँ गया, उसने लेटर लिखा and placed a stamp, उसके ऊपर स्टैम्प लगाई, licked and fixed envelope, और उस एनवेलप को फिक्स करने के लिए, आप देखते हैं ब्लू लगा हुआ आता है, तो उसने उसको फिक्स किया, लिक किया, मतलब ऐसे ही करके जीप से लगाकर उसको लिक किया, और उसको फिक्स करने के लिए, एंड विद अ ब्लो ऑफ अ फिस्ट. फिस्ट मतलब ऐसा हम ये अपने मुट्ठी बना लेते हैं ना, इट इज कॉल्ड फिस्ट.
और उसने उसको ऐसे करके उसको फिक्स कर दिया एंड ड्रॉप्ड इनटू मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। एंड द लास्ट, this is the point, irony moment, the irony moment of this chapter. Okay, before going to start, I told you about the irony. Irony means vyang, yeah, like funny. Okay, so irony moment, last paragraph, this is the last paragraph of your of chapter. God of the money I asked for only 70 pesos, reach me, send me the rest. Now see, as postmaster said that it was impossible to collect 100 pesos at a time, so he sent more than little half, okay, more than a half. When Lancho opened it, he counted the money, so he saw that there was no 100 pesos, so he got angry and again he wrote a letter to God, right? So the postmaster went to open that letter, right? So he sees that in this letter, Lancho wrote, God, ईश्वर को यहाँ गॉड को एड्रेस करके लिखा है, गॉड ऑफ द मनी, कि जो पैसे के लिए आई आस्क्ड फॉर, मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 pesos रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 pesos ही पहुंचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, और जो रेस्ट बाकी जो बचे हुआ अमाउंट है वो आप मुझे भेज दें, बिकॉज आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो नाउ सेंड आफ्टर दैट, बट डोंट सेंड थ्रू द मेल, उसको मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रोक्स, बंच ऑफ क्रोक्स, क्रोक्स मींस डिसऑनेस्ट पीपल, बेईमान लोगों का गुच्छा है, मतलब ये लोग सब बेईमान लोग हैं, ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं, तो डोंट सेंड मी थ्रू द मेल। नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज अ irony moment कि नाउ यू सी व्हाट अ फेथ ऑन गॉड, उसका गॉड पर कितना फेथ है, उसको लग रहा है कि जो मैंने पैसा, उसने सोचा कि गॉड तो ऐसे ही कुडंट मेक मिस्टेक, तो गॉड ने तो मुझे 100 pesos ही सेंड किए होंगे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ये बेईमान हैं, मतलब इन्होंने इसमें से वो पैसे जो भी 30 pesos हैं वो इन्होंने ले लिए हैं। सो दैट्स व्हाई ही सेड टू गॉड कि डोंट send money through the mail, right? So this is the story of a letter to God and a story about faith, Lancho's faith, right? So that's all. And one more important thing, कि you have to prepare, see this video carefully and prepare the notes of this chapter, you have to pay attention on the character sketch of, yeah, mainly मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो एक पोस्टमास्टर एंड एक लेंचो और पोस्टमास्टर के कैरेक्टर स्केच यू हैव टू प्रिपेयर, एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू and take help from your book also. So that's all for the today.